compensate later. So let's start with the new chapter today, and I'll be starting with a new chapter, which we'll be calling as bending. So basically, we'll be studying bending, and bending is like one of the very large part of strength of materials. Okay, so it's like bending is always like जब भी हम बात करते हैं beams की, तो बीम्स में तो होती है, अदरवाइज लेटर ऑन विल सी कि और कहाँ हमें बेंडिंग देखने को मिलती है. Okay. Now before that, I just want to ask you that you have any doubt from previous lecture. No doubt. So let's start now. So actually, we'll be talking about beams, and beams are subjected to bending. As we all know, we have seen that, and I hope I have told you that you have to revise this basics of beam. So where we have gone through it, I'll just scroll down. Yes. So we have discussed beams in great details later, like earlier also. So I just recapitulated once that whenever we define any member, we first of all define कि how loads are acting on it. मैं आपको सबसे पहले यही चीज बताई थी कि whichever member I'll be talking to you, I'll be explaining you कि how the loads are acting. So as I talked about this, uh, I mean, हम जब we were talking about the stresses in chapter 1, तो वहां पर लोडिंग कैसी थी? चैप्टर 1 में जो लोडिंग थी, it was uni-axial loading, right? So that's why we call that member as a bar. So whenever we have a uni-axial loading, we usually use the term bar. And whenever we have a transverse loading, that is loading perpendicular to the longitudinal axis, we call it as beams. So this is what I have told you कि हमें ध्यान रखना होगा हमेशा कि हम कुछ भी मेंबर डिफाइन करते हैं तो वी मस्ट डिफाइन इट्स लोडिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेम कॉन्सेप्ट अगेन. So we'll talk about bending. So first of all, I'll introduce you beams once again formally. Members subjected to transverse loads, or because of the result of transverse loading, internal forces will be generated, and those internal forces are nothing but shear force and bending moment. We have given a lot of time, I mean 2 3 lectures in investigating these internal forces, so I don't think anyone should have any doubt regarding this. If you have, then please discuss.
So let's say this is our coordinate system. This is x. This is y and this is z. X is of course the longitudinal axis and y and z are the transverse axis. और जो लोडिंग एक्ट होगी यहाँ पर, मैं ये सब बातें कर चुका हूँ बीम्स के ऊपर पहले भी. तो लोडिंग विल एक्ट लाइक दिस. So this is the xy plane of symmetry. तो ये assumptions यहाँ पे भी रहेंगे हमारे जब भी हम बेंडिंग थ्योरी डेवलप करेंगे. आज मैं आपको बेंडिंग थ्योरी डेवलप करके दूंगा. एंड सिंस आई विल बी डेवलपिंग द बेंडिंग थ्योरी, देखो ऐसा नहीं है कि मैं आई मीन टू से दैट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन गाइस, बट लेट मी explain that this thing is extremely important for civil engineers, for their future subjects. For that reason I'm talking. मैकेनिकल के लिए और प्रोडक्शन के लिए गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज इंपॉर्टेंट, बट फॉर सिविल स्टूडेंट्स extremely important for their future. Okay, you know that bending is something which is always associated with you guys, because मैकेनिकल के स्टूडेंट्स तो बेंडिंग अब इसके बाद कभी पढ़ेंगे नहीं, बट सिविल वालों की लाइफ में तो बेंडिंग अब स्टार्ट हुई है. तो load members will be subjected to transverse load on xy plane of symmetry. चलिए, इतना कहने के बाद हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल एंड लेट अस मूव फर्दर. और कुछ assumptions मैं लिख देता हूं यहां पर. धीरे धीरे मैं assumptions इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा आपके सामने. सो माय फर्स्ट assumption विल बी we have straight prismatic beam. And this is what we will consider. ठीक है, some points which will be considering मैं आपको वो बता रहा हूं. Second point, as I told you, loads will act on xy plane of symmetry. Third important point before developing any relationship will be, yeah, the straight prismatic का मतलब क्या होता है. देखिए, प्रिज्मेटिक का मतलब स्टूडेंट्स यूजुअली ये समझते हैं कि कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया. करेक्ट, वेरी गुड. बट ये भी तो कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया है. ये भी तो कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया है गाइस. बट ये प्रिज्मेटिक नहीं है क्योंकि इसे स्ट्रेट भी होना पड़ेगा. ठीक है, तो दिस इज प्रिज्मेटिक, दिस इज नॉट. और लोड जो होंगे वो एक्सवाई प्लेन ऑफ सिमेट्री पे लगेंगे. मैंने आपको बता दिया है, मतलब लोड यहाँ पे भी नहीं लग सकता है, चाहे ट्रांसवर्स लोड है, बट यहाँ नहीं लगेगा. लोड ट्रांसवर्स लोड यहाँ पर, और टू बी मोर प्रिसाइज ट्रांसवर्स लोड. ये सब बातें मैं कर चुका हूं क्योंकि ये लोडिंग भी एक्सवाई प्लेन ऑफ सिमेट्री में है, बट ये ट्रांसवर्स नहीं है, इसलिए ये भी नहीं लगेगी. लोडिंग विल बी लाइक दिस. Okay. And I'm just introducing some few points for you guys before developing the theory, because we will be developing a theory, so at least you must be aware of the fact that where you can use this theory. In fact, in GATE exams, whatever question comes, you have to use this theory. But as a sincere student, you must know that कि ये theory हम कहाँ apply कर सकते हैं.
So transverse load will act on XY plane of symmetry. That is very simple thing to understand. Third, a very common assumption we take that material is, in fact, that could be the zeroth assumption, or the point that material is homogeneous and isotropic. Can you tell me what is a isotrope? What are isotropic materials? Guys, anyone like to share their views on isotropic materials? बताएं. Come on, yeah. Properties are same in all direction. Okay, great. Okay, especially mechanical engineers will realize this when they will study material science, and production engineers also. They also study material science in great depth. So properties are same in all the directions. That is what is the meaning of isotropic. So what I'll do is take it over here. Properties are same in all directions. That is what is the meaning of isotropic. And what is the meaning of homogeneous? होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? Properties are same at all locations. मतलब ये होमोजीनियस क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होगी एलिमेंट की, वही प्रॉपर्टी को यहाँ पर भी हर जगह यूनिफॉर्म बिहेवियर, बेसिकली सेम बिहेवियर. तो बेसिकली दिस इज सेम बिहेवियर. और या तो मैं ऐसे लिख देता हूं, और सेम बिहेवियर at all locations. So actually, we are not homogeneous, right? People, we have different behaviors at different in different situations. Properties are same in all directions. मतलब यहाँ पर अगर स्ट्रेंथ है, यहाँ पर अगर स्ट्रेंथ है, यहाँ पर अगर स्ट्रेंथ है, तो तीनों डायरेक्शन में उसकी स्ट्रेंथ सेम होगी. चाहे लोड आप एक्सियली लगा लो, चाहे लोड आप कैसे भी लगा लो, उसकी स्ट्रेंथ जो है, या स्ट्रेंथ ले लो. स्ट्रेंथ इज एक्चुअली नॉट अ प्रॉपर्टी, बट इन स्ट्रेंथ कैन बी अ प्रॉपर्टी. बल्क मॉडुलस अभी पढ़ाया नहीं मैंने आपको. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो हर पॉइंट पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम होगा उसका, हर डायरेक्शन में, हर पॉइंट पर भी सेम होगा, और उस हर एक पॉइंट पर हर डायरेक्शन में भी सेम होगा. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय properties are same in all directions. I repeat, let's talk about modulus of elasticity. The modulus of elasticity will have a same value at all the locations of a member. That is what is called as, that is what is meant by homogeneous. And at all those points, bulk modulus will have same values in all directions. That's the concept. थोड़ा स्पेस बना के लिख देता हूँ. We have very, second is transverse loads will act on XY plane of symmetry. Third will be
जो हमारे सेक्शंस होंगे, ट्रांसवर्स सेक्शंस. नाउ व्हाट आर ट्रांसवर्स सेक्शंस? Sections perpendicular to longitudinal axis. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफर सेक्शन. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. तो सेक्शन परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, ये ट्रांसफर सेक्शन जो होंगे, दे विल बी हैविंग आइदर डबल सिमेट्री और सिंगल सिमेट्री. सर ये डबल सिमेट्री सिंगल सिमेट्री क्या होता है? देखो ये होती है सिंगल सिमेट्री. क्यों सिंगल सिमेट्री कह रहे हैं हम इसको? जस्ट बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन दैट यहां पर आप देखोगे, सो देयर इज अ सिमेट्री अबाउट दिस एक्सिस, है ना? ये मिरर इमेज है दोनों एक दूसरे की. So these guys are like twin brothers or sisters. But अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ सिमेट्री है, यहाँ नहीं है, तो इसलिए सिंगल सिमेट्री. और डबल सिमेट्री का मतलब ये हुआ कि यू हैव सिमेट्री फ्रॉम हियर एंड सिमेट्री फ्रॉम. सो हमारे जो ट्रांसफर सेक्शन होना चाहिए, दे कैन बी आइदर डबल सिमेट्री और सिंगल सिमेट्री. ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल भी सिमेट्रिकल ना हो. लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ऐसे सेक्शंस की हम स्टडी नहीं करेंगे, तो ऐसा सेक्शन जो आर्बिट्रली any section you can take. So I section has double symmetry, T section has a single symmetry. So over here you can take example of T section. Here you have example of I section, circular section, cross section, triangle, trapezium. Like this. तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं इस सब्जेक्ट में. इन्हीं सेक्शंस की स्टडी होगी हमारी. बीम्स में यही सेक्शन होंगे बस. ठीक है. तो अभी तक ऐसा कुछ भी इनवैलिड नहीं लग रहा है मुझे. हमारे जो मेंबर्स होते हैं वो यूजुअली प्रिज्मेटिक ही होते हैं, तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है. मटेरियल्स होमोजीनस होते हैं यूजुअली, तो होते हैं. ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन तो होता है. हर लोकेशन का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता है. इसका रीजन होता है मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के कारण होमोजेनिटी मेनी टाइम्स वी लूज विद इट, क्योंकि वॉइड्स हो जाते हैं. आपको पता है हम जब कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग के कारण वॉइड्स क्रिएट होते हैं. देयर इज अ पोरोसिटी, और फॉर दोस रीजंस मटेरियल मे नॉट बिहेव सिमिलर मैनर एट ऑल द लोकेशंस, राइट? सो ये थोड़ा सा एक ऑफसेट हो जाता है. आइसोट्रोपिक बिहेवियर होता है. मैं 2 मिनट एक्सक्यूज लूंगा सिविल इंजीनियर से. आई विल बी टॉकिंग टू प्रोडक्शन एंड मैकेनिकल गाइज राइट नाउ. दैट सिविल के स्टूडेंट्स भी एज इंफॉर्मेशन इसे नोट कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील. दैट वी हैव अ माइक्रो स्ट्रक्चर व्हिच इज हैविंग अ रैंडमली ओरिएंटेड ग्रेन्स, राइट? So hopefully I'll be teaching you material science whenever the time permits later on. So there is a random grain orientation over here. Because of this randomization, the because of this random behavior of the grains, actually what happens is कि जितना भी वेरिएशंस होता है वो कैंसल आउट हो जाता है और हमें यूनिफॉर्मिटी मिल जाती है. इंडिविजुअल ग्रेन, एक ये ग्रेन है आपका, तो इंडिविजुअल ग्रेन में भी रैंडमली ओरिएंटेड है. तो इंडिविजुअल ग्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आइसोट्रोपिक नहीं है. बट अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेन्स देखोगे तो वो सब एक दूसरे से रैंडमली ओरिएंटेड है, तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर. सो ऑल द वेरिएशंस आर कैंसल्ड आउट बिकॉज ऑफ द रैंडमाइजेशन. सो दैट्स व्हाई वी कैन अज्यूम मटेरियल टू बी आइसोट्रोपिक. बट इसी जगह अगर आप मटेरियल को डिफॉर्म कर दोगे, जैसे आपने रोलिंग कर दी फॉर एग्जांपल, यू माइट हैव लर्नड अबाउट रोलिंग. दिस रोलिंग ओवर हियर. तो रोलिंग के कारण क्या हो जाता है? ग्रेन स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है.
यहाँ रैंडमली ओरिएंटेड ग्रेन्स है लाइक दिस। तो यहाँ पर आइसोट्रोपिक बिहेवियर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर ग्रेन्स का ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में हो चुका है। तो अब स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आपको एक्सियल डायरेक्शन में और कुछ प्रॉपर्टीज इस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी आपकी, क्योंकि ग्रेन्स अब रैंडम नहीं है, ग्रेन्स अब एक प्रॉपर वे में डिस्टॉर्ट होकर अरेंज हो चुके हैं, चिपक इस तरीके से। So definitely this was just a very brief introduction. If time permits, later on we'll definitely go get into the details of how the materials. We'll talk about material science later on. So for now, I'll just be talking that ki materials are usually homogeneous and isotropic, क्योंकि रोलिंग किए हुए मटेरियल को तो हम यूज कर नहीं रहे, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि we have a beam where we have a random grain structure and we are neglecting the voids and any casting defect or any manufacturing defect at this stage. So the material can be assumed to be homogeneous and isotropic. Static prismatic beam is obviously one of the point which we always consider. Transverse load will act on xy plane of symmetry. Yeah, this is somewhat not 100% true, क्योंकि लोडिंग कोई किसी भी मेंबर के ऊपर लोडिंग जब एक्ट होती है तो many times there can be an offset. Okay, so but we will be considering this kind of loading only. And last but not the least is this कि sections हमारे इस तरह के double symmetry single symmetry sections होंगे which we usually have in our एक्सपीरियंस ऑल्सो, कि आपने जितने भी सेक्शंस देखे होंगे यूजुअली वो सिंगल या डबल सिमेट्री ही होते हैं। चलिए, नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर, लेट अस टेक बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, और इस पे कुछ लोडिंग अप्लाई करना है। लेट्स अप्लाई सम लोड। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ। बस 10 मिनट 15 मिनट की बेसिक थ्योरी खत्म हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा लगता है कि यार देयर आर लॉट ऑफ न्यू थिंग्स यू विल लर्न, लॉट ऑफ shear stresses कैसे जनरेट होती है बेंडिंग के कारण, ये बच्चा कभी नहीं समझ पाता है। I've created one animation. I'll show you that, which will definitely help you to relate how it is created. But maybe that will I'll be discussing tomorrow. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भी रिएक्शन P आएगा, P आएगा। लेट अस क्विकली ड्रॉ इट्स शियर फोर्स डायग्राम। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, P ऊपर, फिर कांस्टेंट, P नीचे, 0 पर आ गए, शेयर फोर्स 0 0 0 0 0 0, फिर P नीचे 0 0 0 0 0 0 क्या सॉरी माइनस P माइनस P माइनस P, फिर P ऊपर। So this area is PA and this area is minus PA. और मैं आपको जो SFD VMD बनाना सिखाया हूँ, please practice those questions. I'll tell you one thing, guys. Please do not get demotivated at any stage of your life for any competitive exam. The simple thing I like to tell you is that कि यार at least आप 40-50 मार्क्स भी ट्राई करोगे तो कोई बुराई नहीं है शुरुआत में। 70-80 आ जाते हैं तो वो तो ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट अगर यू आर फीलिंग डीमोटिवेटेड तो एटलीस्ट नहीं कुछ करने से अच्छा है कि आप 40-50 मार्क्स ले आओ, वो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, ताकि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट एग्जाम जो भी आपको देना हो, मे बी 2 मंथ बाद भी बहुत सारी एग्जाम्स होती है, तो आपको सिर्फ 10-20 मार्क्स के लिए फाइट करना पड़े। ओके, दैट्स द पॉइंट आई एम लाइक टू मेक ओवर हियर। सो प्लीज कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ें अपने, whichever way you like। हाँ जी, यहाँ पर क्या होगा, ये कांस्टेंट है तो लीनियर होगा, पीए से इंक्रीज हो जाएगा, वी ऑल नो दैट। सो दिस इज लाइक इंक्रीज 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 इंक्रीज, फिर यहाँ पे शियर फोर्स 0 है, तो dv अपॉन dx इज व्हाट वी नोन एज dm, राइट, सॉरी dm अपॉन dx।
यहाँ पे shear force की वैल्यू 0 है, तो बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा. So this is first time you are seeing bending moment to be constant, right? और फिर ये PA था, ये PA और फिर ये 0 हो जाएगा. So we have a positive bending moment all the time. तो ये इक्वेशन जो है यहाँ पर, ये सबसे, दिस इज द हार्ट ऑफ दिस चैप्टर. कि rate of change of bending moment is rate of change of knee, sorry, change in bending moment with respect to x is your shear force. इसे हम देखेंगे आगे चल के. इसी को मैं आपको एनिमेट करके दिखाऊंगा कि बेंडिंग मोमेंट के चेंज होने से shear forces कैसे जनरेट होता है इनसाइड अ बीम. ओके, अभी के लिए हम ये समझते हैं कि देयर इज वन इंपॉर्टेंट रीजन, देयर इज एन इंपॉर्टेंट रीजन ओवर हियर जहां पर बेंडिंग मोमेंट 0 है. सो बेंडिंग मोमेंट इज 0 ओवर हियर. ठीक है. सो डेफिनेटली बीम, ऐसा नहीं है कि बीम बेंड नहीं होगी बेंडिंग मोमेंट 0 है तो, क्योंकि यहाँ पर तो बीम बेंड हो ही रही ना. यू विल हैविंग अ बेंडिंग लाइक दिस. सो दिस पर्टिकुलर रीजन will be called as a pure bending. So we call it as pure bending over here. It's a pure bending angle. ठीक है. और जो भी स्टडी हम करेंगे, फोर्थ पॉइंट हम करेंगे प्योर बेंडिंग के लिए, अभी के लिए एटलीस्ट. तो थ्योरी जो डेवलप करने वाले हैं वो प्योर बेंडिंग के लिए. तो चलिए तुरंत अब टाइम वेस्ट करे बिना हम थ्योरी डेवलप कर लेते हैं. So let's say that we have two sections over here, HH. ठीक है, ठीक है, इसे बाहर निकाल लेते हैं. Let us take it out. So what I am doing is I am drawing an exaggerated view of the section. और आप सब जानते हैं कि ये बेंड होगा, तो इसको मैं बेंड फॉर्म में यहाँ पर बता के दिखा देता हूँ. एंड वन मोर थिंग आई लाइक टू मेक ओवर हियर इज दैट कि जब भी कोई बीम बेंड होती है, ये तो आपको पता है वैसे, जस्ट एक बार मैं बता देता हूँ. दिस इज इन जनरल. अगर मैं बेंडिंग की बात करूं, ठीक है, तो ये जो बेंडिंग होती है हमारी, इसमें व्हाट हैपेंस इज, आप देखोगे कि ऊपर की तरफ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, और नीचे की तरफ टेंसाइल स्ट्रेसेस है. मतलब नीचे वाला पार्ट खिंचा रहा है और ऊपर वाला पार्ट कंप्रेस हो रहा है. फील आ जाता है, देखिए आ जाता है अगर आप किसी एक बॉडी को बेंड करोगे. इफ यू बेंड दिस, तो यू विल सी दैट दिस सेक्शन, ऊपर वाला जो सेक्शन है ये कंप्रेशन में है, और नीचे वाला टेंशन देखो, स्ट्रेचिंग टेंशन के कारण टूट चुका है. टेंशन में टूटा है ये. तो दिस वाज वीक इन टेंशन, इसलिए लोअर फाइबर टूटा है उसका. कंप्रेशन में वीक होता तो अपर फाइबर टूटता. देखो इसको भी देखो,
ये है, मैं इसको बेंड कर रहा हूं, तो अब जो पहला फेलियर हुआ है वो यहां पर हुआ है नीचे की तरफ, मतलब ये वुड का जो फाइबर है वो टेंशन में वीक था, इसलिए टेंशन में निपट गया। हम एक और अजम्पशन लेंगे यहाँ पर, मटेरियल इज, चलिए तो बाद में भी लिख सकता हूं मैं, अभी जरूरत नहीं, छोड़ो। मैं बता देता हूं कि मटेरियल इज इक्वली स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड कंप्रेशन, ये एक अजम्पशन रहेगा हमारा, ठीक है। चलिए सर, ये बात भी समझ गए हम आपकी, आगे बताएं। तो आगे बस इतनी सी बात है कि ये तो हो गई बेंडिंग। अब एक प्लेन ऐसा होगा, आप माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, तो एक प्लेन ऐसा होगा यहां पर, जहां पर कोई भी स्ट्रेसेस नहीं होगी, जीरो, जीरो प्लेन आई कॉल इट एज। और इस जीरो प्लेन को हम कहते हैं न्यूट्रल सरफेस, वी कॉल इट एज न्यूट्रल सरफेस। और न्यूट्रल सरफेस ट्रांसवर्स सेक्शन पे जहां इंटरसेक्ट करेगा, तो न्यूट्रल सरफेस इंटरसेक्ट्स transverse section at neutral axis. So this guy is your transverse section, we have already discussed, and this guy is your neutral axis. तो यहां पर भी वही बात है कि ये कंप्रेशन में होगा और ये वाला पार्ट पूरा, ये कंप्रेशन स्ट्रेसेस वो कंप्रेशन में होगा ये वाला पार्ट, और ये टेंशन में, ये फाइबर्स खिंचा रही होंगी इस तरीके से। और ये तो मैंने वैसे भी कौन सा सेक्शन लिया है आपका, एच एच और के, दिस इज योर एच एच के सेक्शन। और यहाँ पर एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो थोड़ी बहुत वार्पिंग हो सकती है, वार्पिंग मतलब ऐसे सेक्शंस का वार्प होना, वार्प मतलब ऐसे सल पड़ जाना, सल समझते हो ना, बट यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि देयर इज नो वार्पिंग। तो जो सेक्शंस पहले परपेंडिकुलर थे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से, वो अभी भी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से परपेंडिकुलर ही है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसे 2D में देखें, तो चलिए अब एनालिसिस करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज लाइक अ सर्कुलर आर्क, जिसका एक सेंटर होगा O, ठीक है। और जो न्यूट्रल सरफेस है हमारा, let's say this is a neutral surface over here, so let me draw it with red pen over here. इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, that we can exactly, ठीक है। So we call this radius as rho over here. और लेट्स नेम सम, ये तो एच एच है आपका, ये के है, लेट्स से दिस एंगल इज डेल्टा थीटा। आई नो दैट कि दिस इज वेरी स्मॉल, हम इसे डेल्टा थीटा बना लेते हैं अभी क्योंकि बड़ा है काफी। दिस लेंथ इज लेट्स से
डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स लेंथ किसकी है? बेंडिंग के बाद ये लेंथ किसकी है? डेल्टा एक्स लेंथ जो मैं बता रहा हूं आपको, ये डेल्टा एक्स लेंथ जो है, दिस इज ऑफ दिस गाय, दिस इज डेल्टा एक्स, न्यूट्रल सरफेस की, क्योंकि इन तीनों की लेंथ अलग होगी. इफ यू कॉल देम ए बी सी डी ई एफ, ये एच एच और के तो सेक्शन है मैंने बनाया. अगर आप इन्हें एबीसीडी एफ बनाते हो तो बी की लेंथ है डेल्टा एक्स, बी इज अलोंग द न्यूट्रल सरफेस, राइट. चलिए, तो अब यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन. लेट्स से ये लेंथ है यहां पर, दिस इज अ न्यू लेंथ आफ्टर बेंडिंग. देखिए, बिफोर बेंडिंग एवरी फाइबर, एक्चुअली में फाइबर वर्ड इसलिए यूज करते हैं, मेनी टाइम्स आपने बुक्स में देखा होगा, क्योंकि फाइबर बेंडिंग के लिए सबसे पहले जो एनालिसिस स्टार्ट हुआ था वो लकड़ी के लिए हुआ था, वुड के लिए हुआ था. एंड वुड इज हैविंग फाइबर्स, so we call it as a upper fiber, lower fiber, like this. Though metals does not have such kind of fibers, but still we use the same word, okay, just to have a feel of it. So before bending, every fiber was having a length of डेल्टा एक्स, करेक्ट. सब कोई डेल्टा एक्स था पहले, हर कोई डेल्टा एक्स था, हर कोई डेल्टा एक्स था, हर कोई डेल्टा एक्स था पहले. फिर हुआ क्या? बेंडिंग हुई तो सिर्फ न्यूट्रल सरफेस में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि न्यूट्रल सरफेस पे स्ट्रेन क्या है आपकी? जीरो. सो व्हाट हैपेंस इज नो change in length of neutral surface. Strain is zero because no stress. बट उसके ऊपर वाले फाइबर्स, यहां पर क्या हुआ है? लेंथ डिक्रीज हुई है और यहां पर लेंथ इंक्रीज हुई है. सो लेट अस राइट अ स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन. व्हाई एक्स डायरेक्शन? बिकॉज जो लेंथ चेंज हुई है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अलोंग चेंज हुई है, और ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हमारी एक्स डायरेक्शन है. यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन. और जो भी चेंजेस हुए लेंथ के, वो इसी डायमेंशन के अक्रॉस हुए, इसलिए हम स्ट्रेन एट एक्स लिख रहे हैं. नॉर्मल स्ट्रेन इन एक्स इज फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ओके, लेट्स से दैट कि मैं न्यूट्रल फाइबर से इस डिस्टेंस को y बोल रहा हूं. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज डेल्टा एक्स डैश? सर डेल्टा एक्स डैश वुड बी दिस एंटायर, यहां तक का रेडियस है रो, रो में से y माइनस कर दीजिए, तो रो माइनस y into delta theta, r theta basically, minus what is delta x? So delta x is simply rho theta, rho delta theta upon what is delta x? Rho delta theta. Simple. So we cancel off this delta theta, delta theta, delta theta guy, and we are left with I think rho minus rho will go. So minus y by rho. That is what we'll be left with. So this is our first relation over here, minus y by rho. Now let us assume that, let's assume material to be linear elastic. Linear elastic का मतलब जो Hooke's law को follow करे. We have seen what is Hooke's law, right? The stress is equals to strain multiplied by modulus of elasticity. So sigma x equal to E epsilon x, will get, this implies sigma x equal to E minus y by rho. So that's a relationship we have with us.
कि हमारे पास स्ट्रेसेस पता चल गई हमको, दैट इज व्हाट वी फाइंड वांटेड, राइट? कैसे हैं ये स्ट्रेसेस, जरा एनालिसिस करते हैं इनका। एक्स डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन की स्ट्रेसेस इधर होगी। जस्ट टू रिमाइंड यू दैट in 3D we are working if ये हमारा न्यूट्रल फाइबर है, और सिग्मा एक्स यहां से हमने मेजर किया है सिग्मा वाई को, बेसिकली सिग्मा वाई, वाई यहीं से मेजर किया ना, सिग्मा वाई नहीं, सॉरी वाई यहीं से मेजर किया ना आपने, देख लो ये वाई यहीं से मेजर। तो अगर y 0 डालते हो आप तो स्ट्रेस 0 है, मतलब यहाँ पर न्यूट्रल फाइबर पे कोई स्ट्रेस नहीं, दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी लुक्ड इनटू। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ऊपर जाता हूं तो मैं डेफिनेटली y पॉजिटिव है, नीचे जाता हूं तो y नेगेटिव है, y पॉजिटिव y नेगेटिव। तो जब मैं पॉजिटिव y सब्स्टिट्यूट करता हूं यहाँ पर तो सिग्मा x नेगेटिव आ जाता है, मतलब ये स्ट्रेस नेगेटिव आ जाता है, और मैक्सिमम होगी जितनी y, जितना ज्यादा y उतनी ज्यादा स्ट्रेस। So this is how the things are getting varied away. Linear variation. और यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो ये नेगेटिव है, y नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव y सब्स्टिट्यूट करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव आएगा। थ्री डी में बना के दिखाऊंगा मैं आपको बाद में, अभी तो जस्ट फील दे रहा हूँ किस तरह का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप हुआ है। याद है आपको चैप्टर 1 में मैंने यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था आपको, मैंने कहा था कि यार वी आर अज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म राइट नाउ, लेटर ऑन विल सी दैट देयर इज अ वेरिएशन, दैट द टाइम हैज केम नाउ, we have find it there is a variation। मतलब यहाँ पर there is a war, what is a war, or there is a virus being attacked on this body, which kind of virus? Bending virus, okay, and for this bending virus this stresses, these antibodies are being generated, all right? Now these antibodies, what they are doing, they are trying to bring back the bodies into the initial state, मतलब हर एक पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है एक्चुअली में, आप देखो तो हर एक पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हर किसी का सेम नहीं है। जो सबसे टॉप मोस्ट फाइबर है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली में सबसे ज्यादा बैंड उसी की बजी है, तो उसको सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, इसलिए स्ट्रेस यहाँ पे सबसे ज्यादा है। ये स्ट्रेस क्या बताती है? स्ट्रेस इनटू डीए विल टेल यू द कंट्रीब्यूशन, राइट? तो यहाँ पर स्ट्रेस सबसे ज्यादा है, इसमें अगर डीए मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू भी सबसे ज्यादा आएगी, इंटरनल फोर्स की, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ है, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बैंड इसकी बजी है, इसलिए सबसे पहले टूटता भी यही है। यहाँ तो ये टूटेगा, यहाँ ये टूटेगा, नीचे वाला टॉप फाइबर या बॉटम फाइबर, कभी बेंडिंग में बीच में से नहीं टूटता है, यहाँ तो टॉप फाइबर टूटेगा, यहाँ लोअर फाइबर टूटेगा। उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये इसलिए है क्योंकि जब आप बेंडिंग एज एन एक्सटर्नल वायरस अप्लाई करते हो इस बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो दिस बॉडी डज नॉट लाइक, उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और उसका इम्यून सिस्टम क्या करता है? इंटरनल फोर्सेस जनरेट करना चालू कर देता है हर एक पॉइंट पर, पी 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 पी, बट उनकी वैल्यू सब पी 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 की अलग होगी, पी पी डैश, पी डबल डैश, पी ट्रिपल डैश एंड सो ऑन, सो पीआईज यू कैन से दैट each and every ith point of the section, and definitely now this contribution of each and this contribution of internal forces is not same, each and every what should we say, each and every point has a different contribution, and the one which is most severely affected will contribute the most। इसे और देखेंगे आगे चल के, बट एक चीज यहाँ पर प्रॉब्लम है हमारे साथ कि ये फॉर्मूला इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज रो, एंड मेजरिंग रो इज डिफिकल्ट। Measuring rho is
difficult. So we need a better formula for stress. Okay, so let's move into that category. तो मैं क्या करता हूँ, any section of the beam I'll take. Okay, maybe this HK section only will take back and just understand what happens. Okay, we understand that कि थोड़ा bend हो रहा है. अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेक्शन पे, लेट्स से एचएच है आपका, so we have a bending moment M acting over here, whose value is PA. Correct. एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक हमारा न्यूट्रल फाइबर है, तो न्यूट्रल सरफेस है, न्यूट्रल एक्सिस है बेसिकली, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस. और यहाँ पर हमने अभी देखा कि स्ट्रेसेस डेवलप हो गई हैं इससे लड़ने के लिए, बेसिकली बेंडिंग के कारण ही स्ट्रेसेस जनरेट हुई हैं. लाइक दिस. तो यहाँ पर अगर बहुत ध्यान से समझिएगा, इफ देयर इज नो एक्सियल लोडिंग, अगर कोई एक्सियल लोडिंग नहीं है, मतलब एक्सियल लोडिंग मतलब ऐसी, तो समेशन एफ एक्स 0. अब यहाँ पर एक है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को. ये जो स्ट्रेसेस है यहाँ पर, मैं इसको 3D में दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ एक मिनट, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा. This is fine. ये यहाँ पर होगा. Okay, that's fine. ये मिलकर जो बेंडिंग जनरेट हो रही है आपकी, ये कौन जनरेट कर रहा है? ये स्ट्रेसेस ही तो बेंड कर रहे हैं इसको बेसिकली. मतलब अगर आप इनकी इसकी बेंडिंग इसका क्या कहते हैं, इन सारे फोर्सेस का, इन सारे स्ट्रेसेस के कारण जो फोर्सेस लग रहे हैं, I'll write over it. If बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को. If we calculate movement about, ये रेड वाली एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस होगी, न्यूट्रल एक्सिस of all the internal forces. कौन से इंटरनल फोर्सेस भाई? It must
बी इक्वल टू एम के बराबर होना चाहिए। तभी तो ये अगर एम क्रिएट करेंगे लाइक दिस, अगर ये एम क्रिएट करेंगे लाइक दिस, तो ये एम और ये एम के कारण ये बीम इक्विलिब्रियम में होगी। मतलब दिस गाइस विल बी क्रिएटिंग अ मोमेंट लाइक दिस। मतलब ये जो येलो आया, ये जो मोमेंट आया, मतलब यहां पर भी सेम ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्ट्रेस का। ऐसा थोड़ा ना है कि यहाँ पर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, और वो वाला स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का एम क्रिएट कर रहा होगा, और यहाँ वाला स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का एम क्रिएट कर रहा है, सच दैट ये एम और एम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। इसलिए मैंने अभी सिंप्लिसिटी के लिए क्या लिया है, मैंने सिंप्लिसिटी के लिए एम और एम लिया है दोनों तरफ। प्योर बेंडिंग का केस डिराइव कर रहा हूं मैं आपके सामने। तो लेफ्ट में भी एम है, राइट में भी एम है, और इस लेफ्ट एम और राइट एम ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अगर ये दोनों अनइक्वल हो जाएंगे, ध्यान से सुनना, अगर ये दोनों अनइक्वल हो जाएंगे तो फिर बैलेंस कैसे होगा सर? अगर ये एम होता और यहां पर मान लो कुछ डेल्टा एम आ जाता फॉर एग्जाम्पल, तो ये वाला फोर्स, देखो बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से, हाँ, यू नीड टू बी वेरी सीरियस दिस टाइम, एवरीवन बी अटेंटिव। देखो ये अगर एम है तो ये भी एम होगा, अभी के लिए मान। ये एम को कौन जनरेट कर रहा है? ये। who is generating this m? This m who is generating? So this distribution is generating this m. Who is generating this m? यहां पर भी एक डिस्ट्रीब्यूशन। लेट अस ड्रॉ दैट आल्सो, नो प्रॉब्लम, लेट अस ड्रॉ दैट आल्सो, लेट अस ड्रॉ दैट आल्सो। ये न्यूट्रल सरफेस है आपका पूरा, ओके, ऊपर है तो कंप्रेशन है, आई एम सॉरी, और नीचे है तो टेंशन। लाइक दिस। ठीक है, चलिए, नाउ इट्स गिविंग अ बेटर लुक ओवर हियर। ये कंप्रेशन है, इसको मैं ज्यादा लाइंस बनाऊंगा तो कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा आपको, ये टेंशन। तो ये वाले स्ट्रेसेस ने यहाँ पर क्या जनरेट किया है, ये वाली स्ट्रेसेस ने यहाँ पर ये एम जनरेट किया ना। इसलिए क्या होगा, इनका आपस में सम टोटल जीरो हो जाएगा और इनका आपस में सम टोटल जीरो हो जाएगा, तो ये बीम पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में रहेगी। बट अगर यहां पर मान लो ये डेल्टा एम हो जाता, ये डेल्टा एम हो जाता, तो क्या होता, यहां डेल्टा एम हो जाता, तो ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इससे अलग हो जाता। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दिस डिस्ट्रीब्यूशन, इनफैक्ट मोर, क्योंकि मोमेंट की वैल्यू बढ़ गई। तो मतलब ये वाला जो अपर पार्ट है ये कम होता, ये ज्यादा होता, तो ये वाला पार्ट क्या करता, ऊपर वाला, ये वाला पार्ट कम है, इसको ऐसे देखो, दिस गाय इज मोर, दिस गाय इज लेस, तो ये क्या करेगा, shear जनरेट करेगा। can't you see this on all the planes? और अगर नहीं विजुअलाइज हुआ तो डोंट वरी, इसको मैं आपको बहुत ही तरीके से 3D में विजुअलाइज कराऊंगा। मेरे पास पूरा इसका 3D डायग्राम्स बने हुए हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, बट वो राइट टाइम अभी है नहीं, अभी क्योंकि ये रियल टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, बट मैंने आपको जस्ट हिंट दी है ये हम क्या करने वाले हैं। okay.
So maybe tomorrow we'll discuss about that. But right now they are MM. That's why this is the scene over here. Now, अगर कोई एक्सियल लोडिंग नहीं है, so this all this must be, जितने भी है ये सारे, ये इंडिविजुअली fx इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये इंडिविजुअली fx इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट? तो कोई भी एक ले लेते हैं हम fx इक्वल टू 0, लेट्स से फॉर एग्जांपल, और मैंने जैसे कि बताया ये m और ये स्ट्रेस जनरेटेड जो है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि ये जो m ये जो स्ट्रेस जनरेट हुई है, ये जो स्ट्रेसेस जनरेट हुई है, ये बेंडिंग मोमेंट के कारण है। या फिर उल्टा का है, जो ज्यादा बेटर है कि इन लोगों ने कंट्रीब्यूट करा और इनके कंट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पर एक एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट जनरेट हुआ है। इसे मैथमेटिकली देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स डू दैट। यहाँ पर एक एरिया मान लेता हूं मैं डी है, इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा? सिग्मा इंटू डी। दिस इज द फोर्स, डिफरेंशियल फोर्स। सम टोटल क्या हो जाएगा दोनों का? सम टोटल हो जाएगा सिग्मा इंटू, व्हाट इज सिग्मा? Sigma can be written as minus EY upon rho. And this is your X. And this is equal to 0, this is equal to 0. So मैं इसे नीचे ले चलता हूँ। So you'll get integration of y dA equal to 0. What does this mean? We know that y bar into A, first moment of area 0. क्योंकि देखो why this is 0, because E cannot be equal to 0 and rho cannot be equal to, and rho cannot be infinity. अगर rho infinity हो गया तो भी ये टर्म 0 हो सकती है। Let me explain that way. E 0 हो नहीं सकता, ये बात पक्की है, बट सर रो इन्फिनिटी हो सकता है। रो इन्फिनिटी हो गया तो बेंडिंग ही नहीं होगी। दैट्स व्हाट इट मींस कि रेडियस इनफाइनाइट है तभी तो स्ट्रेट लाइन है। तो ये दोनों केसेस पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल क्या है कि वाई डी ए 0, दैट वे यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब वाई डी ए 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? वाई बार ए इक्वल टू वाई डी ए इक्वल टू 0, मतलब वाई बार 0 हो गया। मतलब जिस एक्सिस के अबाउट आपने मोमेंट लिया था, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट नहीं लिया था आपने, जिस एक्सिस के अबाउट हम यहां बैठे थे, ये वाली एक्सिस की बात कर, और ये y बार आपका 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब ये हुआ, सुनिएगा ध्यान से, कि अगर इसे 0 होना है, अगर ये एफ तो 0 होना है, तो आपकी जो सेंट्रॉइड है, इसको उल्टा समझाऊंगा तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। जो सेंट्रॉइड है आपका, लेट्स से दिस इज सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड जो है ये न्यूट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? ऊपर वाले जितने भी फोर्सेस हैं और नीचे वाले जितने भी फोर्सेस है, इनका सम टोटल 0 हो जाएगा। होना भी चाहिए। हर एक सेक्शन पे कोई एक्सियल फोर्सेस है नहीं एक्चुअली, समझो इस बात को बड़े ध्यान से, क्योंकि कोई एक्सियल लोडिंग नहीं है। देखो एक चीज मैं समझाता हूँ आपको, ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल चीजें हैं यार, ये नहीं समझ में आती क्योंकि बुक्स में क्लियरली लिखी नहीं होती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। आई हैव सीन दैट even very good students, they have doubt in understanding exact business what is going on over here. देखो मैं एक सिंपल वे में समझाता हूँ। ये पी है, ये एक्सियल लोडिंग। अगर एक्सियल लोडिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ? है बड़ा सिंपल, बट वो क्लैरिटी नहीं है बस। तो यहाँ पर हर पॉइंट पे पी 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 पी, यहाँ पर हर पॉइंट पे स्ट्रेसेस फोर्सेस होंगे, कंट्रीब्यूशन होंगे, और इन कंट्रीब्यूशन का सम टोटल जो होगा वो पी होगा। वी हैव सीन दैट मेनी टाइम्स नाउ।
राइट। मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई एक्सियल लोडिंग नहीं होगी तो इस पर्टिकुलर सेक्शन पर कोई भी एक्सियल नेट इंटरनल रिजल्टेंट फोर्स नहीं आना चाहिए। दैट्स द कॉन्सेप्ट। इसीलिए जरूरी है कि मेरी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो सेंट्रॉइड पर है, क्योंकि अगर वो ऊपर चली गई, मान लो अगर न्यूट्रल एक्सिस यहां आ गई फॉर एग्जाम्पल, अगर वाइबार की कुछ वैल्यू आती ना, आप ऐसे समझो, अगर वाइबार लेट से 2 आ जाता फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, तो न्यूट्रल एक्सिस सेंट्रॉइड से ऊपर चले जाती, ये 2 आ जाता, ये न्यूट्रल एक्सिस हो जाती है। और फिर उस केस में क्या होता, यहां पर जितने भी ऊपर जितने भी कंप्रेशन है और नीचे जितने भी टेंशन है, उनका सम टोटल जीरो नहीं होता, उनका सम टोटल जीरो नहीं होता, उनका सम टोटल कोई और वैल्यू होती जो एक्सियल लोडिंग के बराबर होती, क्योंकि जितनी एक्सियल लोडिंग होगी उतना ही तो इंटरनल फोर्सेस जनरेट होंगे एक्चुअली। राइट ओवर हियर, if there will be axial loading, there will be internal axial forces. If not, then if no axial loading, then there won't be, there should not, then every section must be free from internal एक्शियल फोर्सेस। तो बट सर यहां तो हमको दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये एक्शियल फोर्सेस ही तो है सारे, ये स्ट्रेसेस है तो इन स्ट्रेसेस के कारण एक्शियल फोर्सेस ही तो जनरेट होंगे, तो सर यहां तो हमको दिख रहे हैं। आप क्या बोलोगे आप, अरे भाई दिख रहे हैं बट इनका सम टोटल जीरो होना चाहिए, देखना कुछ कुछ माइनस एक्स में कुछ प्लस एक्स में, इनका समेशन जीरो होना चाहिए, तो ये इंडिविजुअली जीरो होना चाहिए, दिस गाइस शुड बी इंडिविजुअली जीरो, ये सारे इंडिविजुअली जीरो होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअली जीरो नहीं हुए तो पता है क्या होगा, यहां पर मान लो पी आ जाएगा और यहां पर चलो मान लो सेम भी हुए, अरे अगर आप ये सोचते हो, कुछ बच्चा ये सोचता है कि सर समेशन एफ एक्स जीरो का मतलब ये हुआ कि इसके कारण जितने भी है और इसके कारण जितने भी है इन सबका सम टोटल जीरो होना चाहिए, ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होगा तो फिर इसके कारण कुछ ना कुछ नेट बचेगा आपका, मान लो पी नेट बच गया, और इसके कारण भी कुछ ना कुछ नेट बचेगा, मान लो पी बच गया, तो ये पी और पी कैंसिल हो जाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक्शियल लोडिंग है ही नहीं, तो इंटरनल फोर्सेस आएंगे कहां से, एक्शियल डायरेक्शन, दैट्स द कॉन्सेप्ट, दैट्स द कॉन्सेप्ट। ओके, तो दिस इज द सीन ओवर हियर, अगर आप इसको देखोगे तो ये सीन है एक्चुअली में, ये जीरो, ये जीरो, ये रिजल्टेंट है, हाँ ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड का रिजल्टेंट जीरो है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड तो है, और ये एम, ये एम, अब सर ये एम कहां से आया, अरे भाई ये एम इन डिस्ट्रीब्यूटेड के कारण आया, this is the physics which is going inside these beams, where this aim came from, this aim came from the moment generated by internal distributed, moment generated by internal distributed uh, axial forces. Okay. And what is this? This is resultant of internal distributed axial forces, which is zero. Why? Because there is no external axial loading. Like that. Same कहानी इधर है,
और ये एम इसको बैलेंस कर रहा है, 0 0 0 को बैलेंस कर रहा है। या पीपी भी होता तो भी ये बैलेंस हो जाता, बट ये 0 0 है, पीपी भी नहीं। आई एक्सप्लेन यू एवरी डिटेल ऑफ इट। नाउ लेट्स गेट बैक टू अवर डिस्कशन। तो ये 0 क्यों हुआ? ये 0 इसलिए हुआ, या इसको ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ये होगा। ऐसा नहीं है कि ये होना चाहिए, होगा। क्यों होगा ये? क्योंकि नो एक्सटर्नल लोडिंग, मतलब इंटरनल रिजल्टेंट, इंटरनल एंटीबॉडीज कुछ आएंगी नहीं एक्सियल डायरेक्शन में। क्यों आएगी नहीं? क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल लोडिंग है। तो उसके लिए क्या होना जरूरी है? उसके लिए ये कंडीशन होना जरूरी है। उसके लिए क्या होना जरूरी है? ये होना जरूरी है। अब ये और वो तो 0 हो नहीं सकते, उसके लिए क्या होना जरूरी है? ये होना जरूरी है, और उसके लिए ये होना जरूरी है। और y 0 है, इसका मतलब आपका सेंट्रॉइड, हम डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं? हम y बार मेजर कहां से कर रहे हैं? हम y मेजर कर रहे हैं सर न्यूट्रल एक्सिस से। अभी से देखो, शुरुआत से y मैं न्यूट्रल एक्सिस से मेजर कर रहा हूं। ये देखो, यहां पर मैंने y यहां से मेजर करा, यहां पर मैंने स्ट्रेसेस जब आपको बताई तो हम यहां से y प्लस और y माइनस कर रहे थे, तो हम यहीं से y मेजर करेंगे। y कितना आया मेरा? लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड क्या आई? लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड आ गई 0 दूरी पर। कहां से 0 दूरी पर? जहां से मेजर कर रहे हो सर आप, न्यूट्रल एक्सिस से मेजर करो, तो यहां से 0 दूरी जाऊंगा तो मैं कहां पहुंचूंगा? अरे सर क्या बोल रहे हो, यही तो रहोगे। तो वही तो कह रहा हूं, तो ये सेंट्रॉइड आ गई। तो सेंट्रॉइड lies on the neutral axis. This is very important concept in bending of beams. The reason is that there is no axial forces acting on the beam. अगर मैं axial force लगा दूंगा बीम के ऊपर, trust me, ये shift हो जाएगा। And this is something as a student you must know. There will be axial loading, there will be internal axial forces. If no axial loading, then every section must be free from internal axial forces. And and summation fx equal to 0 at a section for which centroid, आपको ये याद रखना है, must lie on neutral axis. नेक्स्ट कंडीशन ये है, देखो दो कंडीशन है यहाँ पे, मोमेंट जनरेटेड बाय द इंटरनल एक्सियल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू m एंड दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो ये आपको लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दे देगा, और ये आपको स्ट्रेसेस का फॉर्मूला दे देगा। देखो कैसे, लेट अस टेक इट ओवर एनीवेयर एल्स। थोड़ा अगर मैं नीट एंड टाइडी स्टूडेंट की तरह इसे ड्रॉ करूं, अब मेरी ये न्यूट्रल एक्सिस है, अभी के लिए सेंट्रॉइड भी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये डीए लिया है मैंने, so this is like your यहाँ पर स्ट्रेस इस तरह से सिग्मा, ये फोर्स सिग्मा डी एक्ट हो रहा है, इसके कारण मोमेंट किधर होगा सर? इसके कारण मोमेंट होगा इधर, करेक्ट ना? और इनके कारण मोमेंट किधर होगा? देखो ना, इसके कारण भी किधर होगा? इसके कारण भी इधर ही होगा। बोले यार, यहाँ पर जो स्ट्रेस का, यहाँ पर भी अगर आप ऐसे एक एलिमेंट लेके देखोगे, चेक कर रहा हूँ जिसमें, तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू इधर आएगी सिग्मा डी है, तो ये भी इधर ही मोमेंट देगा, ये भी इधर ही मोमेंट देगा, और ये किधर है? ये भी तो इधर ही है मेरे भाई। दोनों का सम टोटल
इधर आ, इसलिए नेट मोमेंट जीरो नहीं होगा क्योंकि नेट मोमेंट एग्जिस्ट करता है, इसलिए जीरो नहीं होगा। और ये देखो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो रहा है। दैट्स द कांसेप्ट ऑफ इट। तो बस किसी भी एक से इंटीग्रेट करके देख लेना है। दिस इज लाइक y ओवर हियर। ओके, so just a moment, let me check out my equations. So the sigma dA and multiply by, this is the force multiplied by y. If you integrate them all, you will get m. That's it. This must be true. So what is sigma? I was looking for that only. Sigma is minus ye upon rho. So sigma is minus ye upon rho dy equal to m तो लिख ही रखा है, m equal to minus e by rho y square dy। किसके अबाउट मोमेंट लिया है आपने? लेट्स से दिस एक्सिस इज, मैंने पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस सेट कर दी थी, आई थिंक दिस इज z। यस दिस z। तो ये z जो है हमारी है, अभी अब बता सकता हूं मैं आपको कि ये सेंट्रोइड से पास हो रही है और ये न्यूट्रल एक्सिस। नाउ आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट, पहले बोलता तो शायद समझ में नहीं आया। So we have m equal to minus e by rho y squared dA is second moment of area about zz axis, the zz axis, dx ay, this is I zz. So this is m by I equal to minus e by rho equal to what is e by rho? e by rho को हम लिख सकते हैं यहां से, देखो आप, माइनस e by rho is equal to sigma upon y equal to sigma upon y. Or you can write m by I equal to minus sigma x upon y equal to e by rho. And this is what we called as our equation, and that is called as flexural equation. Flexure matlab bending, right? Flexural, elastic flexure formula. Yes, we call it as elastic flexure formula. And the stresses are known as bending stresses or flexural stresses. And assumptions I've already told you. This is an elastic flexure formula, and we'll be using this formula extensively to understand the stresses generated within the beam. So how can we do that? Basically, I'll just brief it out once over here, that we have m by I equal to minus या stress equal to, I can simply, देखो ये दोनों मैंने आपको बताया था कि भाई हमें स्ट्रेसेस कैलकुलेट करनी है, तो मेजर मेरा इंटरेस्ट इसी फॉर्मूले में होगा, तो मैं इसी के बारे में बात करूंगा। तो स्ट्रेस इक्वल टू माइनस m by upon I above z, don't forget that, all right, and stress is along the x direction। चलिए देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर बेंडिंग इस तरह से हो रही है
नहीं इस तरह से नहीं हो रही, मतलब अगर पॉजिटिव सेक्शन है ये, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट इसे पॉजिटिव मानेंगे और ये पॉजिटिव है तो इसे बेंडिंग मोमेंट। दिस वाज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव. दिस इज नोन एज सैगिंग. Smile. You all know that smile has this kind of shape, and this is what we call as hogging. Smiling is positive, and this is like this shape, and this is like your this shape. This is positive. This is negative. यहाँ पर जस्ट अपोजिट उल्टा होगा. जो हमने साइन कन्वेंशन लिए थे, शुरुआत से ये साइन कन्वेंशन लिए थे, मोमेंट याद होगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव होगा और नेगेटिव एक्स एक्सिस में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है. नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा. जस्ट अपोजिट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा और नेगेटिव एक्स एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा. तो दिस इज हॉगिंग लाइक दैट. तो अगर मैं सैगिंग की बात करूं, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट सैगिंग, किसी भी एक को कंसिडर करते हैं यहाँ पर हम सीडी में. This is x, this is y, and then x, y, z. Right hand rule satisfied, right hand coordinate system I have used. And of course, this is the centroid क्योंकि z axis centroid से पास है और यहीं से हम सारे मेजरमेंट्स करेंगे. तो this is like your neutral axis. और बेंडिंग भी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ही होती है. अब ये माइनस साइन का इंपॉर्टेंस क्या है ये भी देख लो. बस आपको डायरेक्टली बता देगा कि स्ट्रेसेस कहां पर कैसी. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सैगिंग है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ केस ऑफ सैगिंग. तो सिग्मा इक्वल टू माइनस एम. एम हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि साइनिंग है तो एम पॉजिटिव होगा. अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूं टॉप टॉप फाइबर्स, तो वाई पॉजिटिव होगा और आई नेगेटिव हो. आई तो सॉरी आई नेगेटिव नहीं हो सकता, आई तो आई रहेगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्ट्रेस की वैल्यू नेगेटिव आ रही है टॉप फाइबर्स पर. हम जानते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर मतलब कंप्रेशन है और यहाँ पे टेंसाइल है. इसी की जगह में अगर माइनस, तो पहले से ही है प्लस एम अगर यहाँ लिखूं क्योंकि साइनिंग में तो प्लस एम ही होगा और मैं नीचे की तरफ जाता हूँ लेट्स से फॉर एग्जांपल जहां पर वाई माइनस है, तो यहाँ माइनस वाई आएगा अपॉन. तो स्ट्रेस मुझे पॉजिटिव मिल जाएगी. हॉकिंग होता तो जस्ट यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि पूरे टाइम यहाँ माइनस माइनस रहेगा और जस्ट अपोजिट सीन क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, तो आई वोंट बी गेटिंग इनटू दैट एंड वेस्टिंग योर टाइम over there. And this is like the stress distribution if you want to draw over here. That we have a, I'll draw it first like that. So if you want to see only stress distribution, then we'll draw only neutral axis over here. And क्लासेस कितनी बजे से तुम लोग आज स्कूल का सॉरी कॉलेज का? भूषण 10. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ बस ये ड्रॉ. ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ जाओ जाओ, जिसको जाना है जाओ, मैं स्ट्रेस डायग्राम बनाओ. If you want to leave, you can leave, no problem. I'll do the doubt discussion now, and I'll draw the stress distribution line. That's it. यार दो चीजें हैं मैं आपसे कह रहा था कि एक तो यार पिछली बार मैंने नोट्स अपलोड नहीं किए थे, ठीक है, आप में से किसी ने मांगे भी नहीं. दूसरी बात,
मतलब आप रिवाइज कर नहीं रहे हो, ठीक है। तो देखो यार, सिंसियर हो जाओ, मैं अभी भी समझा रहा हूँ आप लोगों को, आप ही के लिए बेटर है, ठीक है। इट्स योर करियर विच इज एसोसिएटेड विद इट। और दूसरी बात ये कि like whatever incident happened today, like I went out to some other college. Thank God it was not a train to catch or a flight to catch for other institution. Otherwise, चलो वो तो खैर पहले ही समझ में आ जाता टिकट देख के. But still, if such kind of situation happens, so at least you would have asked me sir कि 750 हो गया सर का, I mean क्लास कैंसिल कर दी क्या सर आपने, या फिर व्हाट्स द सीन सर, क्या है, मतलब थोड़ा पूछ लेते एक बार आप भी तो बढ़ जाता। वैसे ऑल टुगेदर इट वाज 100% माय फॉल्ट, बट यू आल्सो नीड टू बी अवेयर, मतलब आप लोगों को ज्यादा कॉन्शियस रहना है कि सर क्लास क्या है, क्लास नहीं ले रहे हो, क्या हो गया आज, मतलब मे बी इफ वुड हैव आस्क्ड मी शायद हम और बच जाते, हमारा हाफ एन आवर वेस्ट नहीं होता, जो ऑब्वियसली मेरे कारण ही हुआ है। सो आई विल कंपनसेट इट समडे व्हेनेवर यू विल गिव मी दैट टाइम। ओके ओके। और नेक्स्ट टाइम से तुम्हारा क्या एग्जाम है क्या नेक्स्ट वीक? तो बताओ मुझे क्लासेस कैसे करना है तुम लोगों का। वीक में 2 दिन करना है नेक्स्ट वीक की 3 दिन चलना है, या एक ही दिन सर, या एक भी दिन नहीं, क्या बोलते हो, जल्दी बताओ। व्हाट आई विल से दैट कि एटलीस्ट 2 डेज रखते हैं या 1 डे रख लेते हैं, बट बिल्कुल छुट्टी मत करो, नहीं तो बिल्कुल ही लिंक टूट जाएगा, मजा नहीं आएगा। और सेमेस्टर एग्जाम है तुम लोगों का क्या है? एनी वन स्टूडेंट टॉक टू मी जिसका क्लास नहीं है 10 बजे, जिसका क्लास है वो तो जा सकता है, बट जिसका क्लास नहीं है, लेट्स से धवल। सर क्या भाई एग्जाम से तुम लोगों का नेक्स्ट वीक? मिड सेम है सर। अच्छा मिड सेम है, आई जस्ट थॉट कि सेमेस्टर एग्जाम है। ठीक है, तो फिर नहीं, तो नवंबर में होगा सर। 3 डेज ही रखते हैं फिर, करेक्ट? चलेगा, हाँ। और मुझे बाकी आप चलेगा। ग्रुप पे डिस्कस कर लेना, जैसा आप लोगों को सही लगे ऐसा रख लेंगे, हाँ ठीक है। मोर द बेटर। ओके, चलिए, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी बना दिया है मैंने। नाउ एनी डाउट यू हैव प्लीज आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव द सेशन। सर हाँ जी। हेलो सर, गेट के फॉर्म के बाद पूछना था। हाँ बोलो। मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, हाँ, तो दोनों फॉर्म का क्या फायदा है सर? मतलब दोनों पेपर के लिए अप्लाई करने का। कौन सी ब्रांच में हो आप? मैकेनिकल। मैकेनिकल। तो क्या पूछ रहे हो, थोड़ा सा कैन यू बी बिट लाउड एंड क्लियर? सर 2 पेपर है ना सर, मतलब गेट का जो 2 पैटर्न है पेपर अभी, है, करेक्ट। तो दोनों पेपर के लिए अप्लाई करने का क्या फायदा रहेगा? यार देखो, I'll just say that you will have experience with both of these papers. XC से भी एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, और मैकेनिकल से भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो XC के साथ इतनी ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, करेक्ट। XC का थोड़ा सा जो है डोमेन वो कम होता है, क्योंकि आप 2 ही सब्जेक्ट अपीयर कर रहे हो उसमें, यहाँ पर आप 10 सब्जेक्ट अपीयर कर रहे हो मैकेनिकल में। तो द ओनली वर्ड आई विल से दैट कि एक्सपीरियंस, क्योंकि फ्यूचर में 4th ईयर में अगर आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी क्लैरिटी नहीं है लाइफ में, व्हाट्स योर नेम? हाँ भूषण भूषण, भूषण अच्छा सोनी। भूषण, यू आर ऑलरेडी हैविंग अ क्लास राइट। सो भूषण, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है कि मुझे आगे क्या करना है, ठीक है, और लेट्स से आपको आगे जाके क्लैरिटी आ जाती है कि सर मुझे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, फॉर एग्जांपल XYZ में। अगर आपको उस पर्टिकुलर XYZ ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, और मान लीजिए वो पर्टिकुलर XYZ ऑर्गेनाइजेशन XC के थ्रू रिक्रूट कर लेती है या कर रही है, तो आपको पता रहेगा कि यार मेरा काम एक्सी की प्रिपरेशन से ही हो जाता है। देखो एक्सी भी इजी नहीं है, एक्सी में सॉम और एफएम बहुत डेप्थ में आएगा, और थर्मो, 3 सब्जेक्ट्स में से 2 जो भी आप चूज करते हो, ठीक है। तो आई जस्ट से दैट कि इफ एट ऑल अगर फाइनेंशियल इशू नहीं है, तो एक्सपीरियंस लेना चाहिए आपको एक्सी के साथ। और एक्सी तो ऐसा होगा कि भाई एक्सी का तो पूरा सिलेबस आप तैयार कर सकते हो फरवरी के पहले पहले। सॉम एफएम तो आपका हो ही जाएगा, और मैथ के लिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि आप पैरेलली
ऑनलाइन फ्री में hundreds of resources available. You don't have to invest a penny also. Just take a look at a good course और आप कर सकते हो ऑनलाइन प्रिपेयर मैथ. और मैथ हम लोगों का भी प्लानिंग में है यहाँ पर, मतलब प्रेरणा स्कीम में भी प्लान है वो आपका, बट वो कब होगा वो पता नहीं, इसलिए अभी आप खुद से भी करना चालू कर सकते हो. तो प्लान करो बस ये 3 सब्जेक्ट, थर्मो नहीं, एफएम, सॉम और दिस गाय मैथ, ये 3 भी कर लिए ना आपने मार्च तक, फरवरी तक, और इन तीनों के साथ पेपर देकर आए, और लेट्स से यू गेट 50-60 मार्क्स इन एक्सी, यू विल बी इन, और ज्यादा ही आएंगे यार, ये 3 सब्जेक्ट हो गए तो आई एम 100% श्योर कि आप 70-80 तक भी लेकर आ सकते हो. तो एटलीस्ट यू विल गेट अ गुड कॉन्फिडेंस. तो अगले साल आप एक्सी के साथ और बेटर कर सकते हो, या फिर आप मैकेनिकल को अपना सब्जेक्ट बनाकर आगे बढ़ सकते हो, जो करना ही है आपको 4th ईयर में, डेफिनेटली करना है, मैकेनिकल से देना है आपको, बट एक्सीज के साथ एक्सपीरियंस भी हो जाएगा आपका, और ये 2-3 सब्जेक्ट भी आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे. 3 सब्जेक्ट तैयार हो गए आपके, तो मैकेनिकल के हिसाब से आप मान के चलो एटलीस्ट आपका 30 मार्क्स का प्रिपरेशन हो चुका है, और 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड भी जोड़ लो तो 45 मार्क्स, मतलब 3rd ईयर कंप्लीट करने से पहले या करते करते आपका 50% गेट सिलेबस खत्म हो जाएगा मार्क्स वाइज. 4th ईयर में आपको सिर्फ 50% पढ़ना रहेगा, जो कि आसानी से कर सकते हो. तो फिर आप 50% और पढ़ के मैकेनिकल से तो स्ट्रांगली दे ही सकते हो, और एक्सी से भी स्ट्रांगली दे सकते हो. तो आपके पास 2 पाथवेज होंगे. किसी कारण से लाइफ में आगे कुछ प्रॉब्लम आती है, मान लो जॉब नहीं लगता है कॉलेज से, या फिर ये भी हो जाता है मान लो कि यार एक्सी में मुझे इतना अच्छा करियर नहीं मिल पा रहा है, तो मैकेनिकल है आपके पास, और मैकेनिकल में अच्छा नहीं मिल पा रहा है, तो एक्सी है. I'll recommend कि if at all there are no financial issues, you must definitely fill up both the forms, because I know that 1500, 3000 is a relatively a good amount, so accordingly, but amount to be invested, definitely an amount to be invested. और मैकेनिकल से बेटर है कि अभी तो एक्सी में भर दो आप, या तो मैं भी ये कह सकता हूँ, क्योंकि इतना प्रिपरेशन आपका अच्छे से हो जाएगा, इतना प्रिपरेशन आप अच्छे से कर लोगे. तो तैयारी हमेशा कंफर्टेबली करना चाहिए, कंफर्टेबली एंड सिंसियरली. ओके भूषण, थैंक यू सर. नॉर्मली कट ऑफ क्या होता है आईआईटी का एमटेक के लिए? आईआईटी से एमटेक करना है तो 60 मार्क्स भी हो जाता है. अभी रुक जाओ, मैं तेरे को ना 1 मिनट रुक जाता हूँ, आई विल शो यू. मतलब मेरे पास जो लास्ट स्टूडेंट का रैंक आया जो आईआईटी में गया है, आईआईटी रुड़की में नहीं, आईआईटी, रुक जा 1 मिनट, उसका नाम है मेहुल, जस्ट सर्च उसका, मैं व्हाट्सएप देखता हूँ, मुझे इसका स्कोर याद आ जाएगा, ऐसे स्कोर याद नहीं होता है. दिस इज लास्ट स्कोर ऑफ माय स्टूडेंट. इसके मार्क्स थे 66 और इसका रैंक है 1656. और भी मैं आपको थोड़ा डेटा देता हूँ. इसका हुआ था, इसका कहाँ हुआ था, ये इसका हुआ है आईआईटी रुड़की में, और इसका हुआ है आईआईटी कानपुर में. आईआईटी कानपुर मैन्युफैक्चरिंग दिया इसको, इसने लिया नहीं, इसने आईआईटी रुड़की नैनो टेक्नोलॉजी लिया. 2 रीजन थे, इसका ये बाद में कंफर्म हुआ तो यहाँ पे ये फीस बढ़ चुका था, और दूसरी बात ही वांटेड टू जस्ट अ मिनट,